Hello everyone. So I hope you are fine at your homes. So we are going to discuss the extra questions of chapter number 11, that is fiber to fabrics. So we will start with the question number 4, that is find the odd one out. Kindly note that question number 1, 2 and 3 are the objective type questions, fill in the blanks and true false, that you can do by yourself. So in case you will be having any doubt in those questions, you can ask me. Next is find out the odd one out. So सबसे पहले odd one out we have to find out, that is among sheep, alpaca, llama and silkworm. So silkworm is a different thing. These three animals produce wool, whereas silkworm produces silk. Next is shearing, scouring, reeling and dyeing. तो we can हमें पता है कि in the processing of wool there is dyeing process, scouring and shearing. Reeling नहीं होता, तो इट इज़ इन द केस ऑफ रीलिंग किस में होता है, सिल्क के केस में. नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द फैब्रिक. फैब्रिक किस चीज़ से बना होता है, कपड़ा, दैट इज़ फ्रॉम द फाइबर्स. तो फाइबर इज अ बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक. मे मनी टू नेचुरल सोर्सेज फ्रॉम विच इट कुड बी ऑब्टेन्ड, दैट इज हम कहाँ से ले सकते हैं, फ्रॉम द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल से भी हमें मिल सकते हैं. Wool can be obtained from animals. Next question is wool can be obtained from the animals other than sheep. Name two such animals and their quality. तो wool किन किन और animals से हमें मिलती है other than sheep, that is angora rabbit, angora goat, york से भी मिलती है ना, alpaca, llama, all those. Camel से भी मिलती है. तो you can do write any two and define their qualities. So we have taken angora goat, that is the wool fiber obtained from the angora goat is lustrous, बहुत ज़्यादा शाइनी होता है and smooth होता है and it is highly durable, बहुत ही ज़्यादा durable, लंबा समय तक चलने वाला होता है. नेक्स्ट इज angora goat. angora rabbit की जो wool होती है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होती है and it is shiny and it is having insulating property, that is the which do not allows the heat of the body to go outside, and from बाहर से भी जो heat है it do not allows it to enter our body. Okay, next is what do you mean by the shearing and scouring in the process of production of wool. shearing and scouring क्या होता है, shearing means to remove the wool, है ना, from the body of the sheep, whereas scouring means to wash that wool with the warm water. Next is write down the common uses of silk fabric. silk fabric कहाँ कहाँ पे use किया जाता है. it is used in bed sheet, cushion covers, right. So all those you can write. also in the ribbons of typewriter. typewriter जो अक्षर होते हैं, letters होते हैं, उनमें use किया जाता है. also for the Indian sarees, Indian sarees बनती हैं वो also from the silk. What changes take place in the pupa stage of the silkworm. pupa stage पे it stops eating, है ना. at that stage क्या क्या changes आते हैं. एक तो silkworm है जो वो moth, silk moth में convert हो जाती है, मीन जिसके wings आ जाते हैं, right. तो at this stage the conversion of larva to adult silkworm takes place. after few days larva stops eating and starts weaving its cocoon. वो अपने around cocoon wrap करने लग जाता है and secretes the liquid from its gland and it moves in the figure of 8. ऐसे करके it wraps itself with the silk fiber that is emerging from its head. ठीक है. एंड आफ्टर दैट ये जो अपने अराउंड रैपिंग की होती है फाइबर से, इट सॉलिडिफाइज एंड ये पक जाता है, राइट. सो दिस इज दीज आर चेंजेस दैट टेक्स प्लेस. इट स्टेज इनसाइड द cocoon फॉर 2-3 वीक्स के लिए उसी के अंदर रहता है एंड आफ्टर दैट इट emerges आउट विद द विंग्स, दैट इज इट कन्वर्ट्स इनटू सिल्क मॉथ. ठीक है जी. ओके. Next come what are the common health problems found in the people who work in silk industry. silk industry में one thing is that they may face the respiratory problems like asthma. उनको हो सकता है सांस लेने में मुश्किल आ सकती है. other is as we know that जो temperature चाहिए होता है in winters also it should be 28-29 degree. तो उसके लिए वी नीड टू बर्न फायर, है ना. तो इन दैट केस द गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती रहती है बाय द चारकोल फायर.
तो which is very poisonous gas for the workers which are working in the rearing process. Next is question number 11. Differentiate between airy silk and other types of silk. Airy silk और दूसरी silk, we know that हमने 4 टाइप्स की सिल्क पढ़ी थी, मलबरी सिल्क, तुषार सिल्क, एरी सिल्क एंड मूगा सिल्क. तो वी नीड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द 3. दैट इज़ जो एरी सिल्क होती है इसका जो कलर है इट इज़ वूली वाइट कलर, वेयर एज मूगा सिल्क का गोल्डन कलर होता है, तसार का कॉपर कलर. एरी सिल्क इज़ लेसर ब्राइट, सबसे ब्राइटेस्ट होती है. जो मूगा सिल्क है अमंग दीज विच इंक्रीजेज, जो उसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाती है व्हेन इट इज़ वॉश्ड. क्लियर. वॉर्म्स फीड, जो सिल्क वॉर्म्स प्रोड्यूस करती हैं एरी सिल्क को, दे फीड ऑन द कैसर प्लांट्स. वेरास जो वॉर्म्स फीड करती हैं विच प्रोड्यूस द मूगा सिल्क, दे फीड ऑन द सोम एंड सालू प्लांट्स फीड करती हैं. वॉर्म्स फीड ऑन अर्जुन एंड ओक प्लांट, जो तसार सिल्क प्रोड्यूस करती हैं they feed on the arjun plants. How is the silk obtained from silkworm? से कैसे निकलता है? We know that जब cocoon is formed by the silkworm around its body, तो आफ्टर 2-3 वीक्स वो क्या हो जाता है, बिल्कुल उनको बाहर नहीं आने दिया जाता द सिल्कवर्म्स को. तो what happens they are simply जो cocoons होते हैं जिनमें लाइव सिल्क वॉर्म्स होती हैं, उनको वॉश कर दिया जाता है विद वार्म वाटर, ड्यू टू विच जो सिल्क वॉर्म्स है दे डाई एंड जो कोकून है वो अनरोल कर लिया जाता है ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. तो उनको अनरोल करके 800 मीटर तक का लॉन्ग फाइबर मिल जाता है. तो हम उनको बाहर क्यों नहीं आने देते, सिल्क वॉर्म्स को बाहर क्यों नहीं लेके आया जाता? बिकॉज इफ़ दे कम आउट, इमर्ज आउट फ्रॉम द कोकून, तो कोकून की जो थ्रेड है वो टूट जाती है, ड्यू टू विच इट बिकम्स यूजलेस. ठीक है. सो दिस इज नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड टू स्टोर सिल्क इन द फैब्रिक लाइक कॉटन में ही क्यों रखना चाहिए? तो वी नो दैट बेटा जो सिल्क होती है इट हैव सम मॉइस्चर इन इट, है ना. मॉइस्चर की वजह से अगर हम उनको प्लास्टिक के कपड़े में बंद करके रख दें तो वो ख़राब हो जाएगा, उसका कलर डल पड़ जाएगा एंड ऑल्सो देयर कुड बी ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन इट. तो इट शुड बी ऑलवेज केप्ट इन द कॉटन क्लोथ्स जहाँ से उसके अंदर से एयर पास होती रहे एंड इट वुड नॉट बिकम स्मेली एज वेल एज उसका जो कलर है वो भी डल ना हो. नेक्स्ट इज वाई शुड बी अवॉइड डूइंग द फॉलोइंग टू द वुलन गारमेंट्स. को हमें पहली चीज़ कि उनको ड्राई नहीं करना चाहिए डायरेक्ट सनलाइट में, बिकॉज इनका कलर फेड हो सकता है एंड इनका जो नेचुरल अपीयरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा. अदर इज़ हैंगिंग दैम इन द वेट गारमेंट्स फॉर ड्राइंग. अगर हम उनको हैंग करके ड्राई करेंगे गारमेंट्स को तो व्हाट वुड हैपन बेटा, उनकी जो लेंथ वाइज वो बहुत लंबे हो जाएंगे, बिकॉज वाटर अब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत सारा, जिसकी वजह से दे बिकम वेरी हैवी एंड व्हेन वी हैंग इट तो वो ज़्यादा लेंथ उनकी बढ़ जाती है विच में लूज देयर एक्चुअल साइज. सो दिस इज So these are the question answers. Those are the extra questions. So you need to do these questions. So thanks for watching.